Assalamu alaikum. As promised, we're back with some past paper questions of congruence and similarity. Here we go. I mentioned all of the question types that we're going to do. One is a similarity test question, a proportional sides question, area of similar figures, area of triangle with the same height, congruency test, volume of similar figures with ratio, volume of similar figure with sides given, 1:n question, lengths using scale, and area using scale. Here we go. Let's begin with the first one, similarity test. जिस तरह आपके बेसिक क्वेश्चन से जब टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है कि सिमिलर किस तरह प्रूव करना है, वी गॉट सम थ्री टेस्ट एक्सप्लेन व्हाई ट्रायंगल्स ए बी डी and BDC are similar. ABD is this triangle, ABD. BDC is this one over here. Why are they similar? Let's try to understand why they are similar. We've got two angles which are already given, ye or ye, that they're equal. What else do we have? We can find that this angle, we can deduce that this angle is equal to this angle. Why? Because alternate angles and alternate angles क्या होते हैं? Students usually remember it as Z-shape angles. जो एक ही साइड पे बनता है और एक ही साइड पे होता है between two parallel lines. So these two angles are equal as well. So once we've proven that two angles of one triangle are equal to two corresponding angles of the other triangle, they are similar. How will we write that? We write angle ABD is equals to angle ABD is equals to CDB और ब्रैकेट में आगे alternate angles. Why? Because that comes from the same concept के दो parallel lines और एक transversal कट कर है. And then we'll write angle ADB is equals to angle DCB. इसका रीजन क्या है कि दे आर ऑलरेडी गिवन. सिमिलैरिटी टेस्ट हमने यूज किया एंड सिंपली वी कैन से ए टेस्ट, लास्ट स्टेप ए टेस्ट, एंड दैट इज व्हाई दीस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ए बी इज 4 बी डी इज 6, ए बी इज 4 बी डी इज 6, ए डी 4.2 है, वो भी ऑलरेडी लिखा हुआ था. कैलकुलेट बी सी. बी सी कौन सी लेंथ है? ये वाली. आस्किंग अस टू फाइंड दिस. हमने ये दो ट्रायंगल्स प्रूव किए कि सिमिलर है. आप गौर से देखना इन दो ट्राइंगल्स को अब हमने किस तरह मेंशन करना होता है. ए बी ओवर बी डी, हम प्रोपोर्शनल की साइड जो प्रोपोर्शनल है उनका एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, उनकी इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे. ए बी ओवर बी डी, फर्स्ट टू लेटर्स ओवर फर्स्ट टू लेटर्स, बी डी ओवर डी सी, ये कौन से हैं? सेकेंड टू ओवर सेकेंड टू, एंड ए डी ओवर बी सी, फर्स्ट एंड लास्ट ओवर फर्स्ट एंड लास्ट. सॉरी, should be over the last letter like this. What you're going to do is you're going to start plugging in values. और आपने किसकी लेंथ निकालनी है? BC की. तो you'll be needing this fraction for sure. इनमें से आपने सिर्फ दो चूज करनी है. अब AB की वैल्यू कितनी है? 4. BD की वैल्यू कितनी है? 6. B और फिर BD की वैल्यू, वेट होल्ड ऑन, हाँ एक साइड कॉमन है. तो BD की वैल्यू 6 है और DC की वैल्यू वी डोंट हैव इट, and AD की वैल्यू is 4.2, BC की वैल्यू we don't have that. So we'll select this and this side of the equation of the proportionality sequence and put it equals to each other. 4 over 6 is equals to 4.2 over BC. तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो. BC is equals to 4.2 into 6 over 4. BC comes out to be 4.2 into 6 divided by 4. We get the answer as 12. ये हमारा ये पार्ट भी हो गया. Now the saying write down the value of triangle ABD over BDC. Triangle ABD कौन सा है? ये वाला ABD over BDC. How will we do this? If you notice, these two triangles happen to have both of the lengths given. Let me check. And they are similar as well. अब area of triangle ABD, इसी को फॉर्मूला बना लेते हैं because we don't have that much space. L1 over L2 whole square.
L1 की वैल्यू यहाँ से आप कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो। ट्राइंगल ए बी डी में से कोई एक कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ सेलेक्ट कर लें। तो ए बी हम अगर सिलेक्ट कर रहे हैं, हमने ये देखना है ए बी के साथ कौन सी कॉरस्पॉन्ड करती है लेंथ। अब इस तरह डायग्राम से समझने की कोशिश करोगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपने यहाँ से देखना है कि ए बी आर द फर्स्ट टू लेटर्स, यहाँ से भी आपने फर्स्ट टू लेटर्स लेने हैं। ए बी इज 4 एंड बी डी इज 6, तो 4/6 simply going to select 4/6 and take the square of that। 4 का स्क्वायर आ गया 16 और 6 का स्क्वायर आ गया 36। अब सिंस आप वो नोट करो एरिया ऑफ ट्राइंगल, वन ट्राइंगल ओवर एरिया ऑफ अनदर ट्राइंगल मांग रहे हैं। दे नॉट आस्किंग अस फॉर द वैल्यू ऑफ वन ट्राइंगल्स एरिया, दे आस्किंग अस राइट ऑन द वैल्यू ऑफ द रेशियो। इसी फॉर्म में फ्रैक्शन की फॉर्म में क्या आंसर आएगा, तो सिंपली गोइंग टू से 16/36। ठीक है। Over here we've got an area of triangle with the same height. How is this the same height? Because ये तमाम चीजें जो है already mentioned, जो यहाँ mentioned है, given है। AB is parallel to PQ, AQ is 2, QC is 4, where is that? ये भी mentioned है। ये चीज mentioned नहीं है। Area of triangle CPQ is 6। ये यहाँ पे इसको mention कर लेते हैं कि इसका area 6 centimeter square है। If this is 6, they are asking us to find the area of triangle AQP। AQP कौन सा triangle है? This one। इसका एरिया कैसे निकलेगा? For that you need to understand कि ये जो दो triangles हैं, let me highlight them, this one and this one, इन दोनों की height same है। How is it same? इनका ये top most point है। Basically vertex को मैं top most कह रहा हूँ। I know you might be wondering कि ये top पे किस तरह, अगर ये इधर bottom पे placed है, बट ये ट्राइंगल ये अपसाइड डाउन है। ए क्यू पी इज अपसाइड डाउन, पी क्यू सी इज अपसाइड डाउन, तो इनकी हाइट ये होगी, दोनों की हाइट सेम है। तो वी विल से एरिया ऑफ लेट्स से सी पी क्यू ओवर एरिया ऑफ ए क्यू पी इज इक्वल टू L1 ओवर L2। वुड वी टेक द स्क्वायर ऑफ दैट? नो, बिकॉज इन दोनों की हाइट सेम है। अब मैंने A1 और A2 क्यों नहीं लिखा? जस्ट टू मेक थिंग्स क्लियर। एरिया 1 और एरिया 2 भी लिखा जा सकता है। इसको अगर आप ट्राइंगल का नाम मेंशन कर दो तो वो और भी अच्छी बात है कि एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। अब इसको आप B1 और B2 में चेंज कर दोगे, आप लेंथ 1 में भी रहने दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट द आइडिया फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि इसमें कोई स्क्वायर नहीं लेना, दोनों की हाइट सेम है। अब एरिया ऑफ सी पी क्यू कितना है? 6। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए क्यू पी वो हमने निकालना है, बिकॉज द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन, इट सेज फाइंड इट्स एरिया, राइट। और B1 कितना है? अब लेट्स गो टू दैट। CPQ की बात हो रही है जिसकी बेस 4 है और दूसरे की बेस 2 है, तो B1 ऊपर मेंशन होगा 4/2। नाउ लेट्स टेक दैट इक्वेशन ओवर हियर एंड ट्राई टू सॉल्व दैट। 6 into 2 will give us 12 is equals to 4 into area of triangle AQP, triangle AQP। अभी 4 वहाँ के डिवाइड होगा और ट्राइंगल AQP का हमारा एरिया आ गया 3। Do not put the arrows like this in the exam। अक्सर स्टूडेंट ये करते हैं, that's why I'm trying to point that out over here as well। Do not leave it like this, please write the answer over here, leave it as a complete format। This does not look good कि आप arrows लगा दो, although working में already काफ़ी arrows लगे हुए होते हैं। Make sure you write the answer over here, do not leave it for the examiner to find it themselves। We've got a congruency test question for those of you who still have to study geometrical property of circles। You can skip this question, but those who are preparing for the CIEs, ये question ज़रूरी है। तमाम चीज़ें जो mentioned है एक दफ़ा पढ़ लेनी ज़रूरी है, but they're already given over here। तो question said prove that triangle PAO। in order to save time I'm skipping this, you can pause the video and read this। PAO ये यहाँ पे है, is congruent to QBO, ये आपने प्रूव करना है and give a reason for each statement। ये प्रूव करना है कि कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं। लेट्स गो जूम इन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारा ये वाला जो एंगल है, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस एंगल। व्हाई? बिकॉज बोथ आर 90। द रेडियस एंड द टेंजेंट मीट एट 90 डिग्रीज। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। व्हाई इज दैट? रिमेंबर उन्होंने रीजनिंग मांगी थी, हम वो लिखेंगे भी सही अभी। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। व्हाट एल्स डू वी हैव? This side is going to be equal to this side। Why? Because ये दोनों radius हैं of the same circle, they both radii of the same circle, तो ये भी equal होंगे। So you will start saying PAO is equals to QBO। Why? They both equals to 90 degrees। अब यहाँ पे आगे आपने mention कर दें
तो बहुत अच्छा है कि टेंजेंट एंड रेडियस meet at 90 degrees. What else do we have? AO, length AO is equal to length BO. Radii is the plural of radius of same circle. And the last thing, we can write angle AO. What's the letter over here? Let me confirm that. AOP. AOP, and I'll say BOQ. BOQ. Angle BOQ. They're equal. Why? Because they're vertically opposite angles. I'm using a lot of abbreviations here to avoid them in the exam. और writing भी clear होनी चाहिए, जैसे ये मैंने circle लिखा हुआ है. Please आपकी writing clear होनी चाहिए exam में, so the examiner can clearly understand what you've written. ठीक है? That gives you a good how many marks? Doesn't have the marks over here, but this is most probably a 3-mark question. A 3-mark question. Done. We are moving on to volume of similar figures once we given the ratio. अब इसमें हमारे पास वॉल्यूम है. रिमेंबर करो वॉल्यूम के फॉर्मूला हमारा क्या था? V1 over V2 इज इक्वल टू L1 over L2 होल क्यूब. हमारे पास इसकी वॉल्यूम की वैल्यूज हैं क्या? वॉल्यूम इज 8 over 27 is equals to, are we given anything? हाँ, we given the height of triangle A, ये रही 12, और वो शेप में मेंशन नहीं है. तो अगर और छोटा अगर वॉल्यूम जो है नहीं, दे मेंशनिंग इट ए, दे मेंशनिंग इट ए, और अगर रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स इज 8:27, तो यू कैन अज्यूम दिस इज, if you're going to assume this is because this is a smaller shape, you're going to assume the volume, the smaller volume is representing this. तो अगर 8 है तो वो ऊपर लिखा जाएगा, और ये 12 भी ऊपर लिखा जाएगा, बिकॉज 12 उन्होंने बता दिया है सिलेंडर ए है, और वॉल्यूम अगर 8 है विच इज लेस देन 27, तो 27 इसका होगा. तो वी कैन राइट ए length of A over here which is 12 over L, let's just call it L and not L2. Why? Because वो भी क्यूब का साइन भी ऊपर आना है तो कंफ्यूजन होगी. And write it like this. Now if you were to take the cube of these two numbers, 8 over 27 is equals to 12 का क्यूब क्या है? 12 क्यूब comes out to be 1728 and नीचे आ जाएगा L क्यूब. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इस इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं. 8L क्यूब इज इक्वल टू 1728 इंटू 27. अब क्या होगा कि ये 8 वहाँ जाके डिवाइड होगा और फिर आप पूरे आंसर का क्यूब रूट लोगे. 1728 इंटू 27 गिव्स अस 46656 divided by 8 and the cube root of that gives us 18. So I've jumped a couple of steps here, but अगर आपकी algebraic manipulation is good, you will be able to figure it out. In case it's not making sense, I'll explain. 1728 को डिवाइड मल्टीप्लाई किया ऐसे, 8 को वहाँ जाके डिवाइड कर दिया. ठीक है, जब 8 को वहाँ जाके डिवाइड किया तो वी गॉट 5832. L क्यूब इज इक्वल टू 5832. अब जब दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लिया टू कैंसिल दिस, सॉरी क्यूब रूट ले लिया टू कैंसिल द क्यूब, L comes out to be 18. Alright. Now similar buckets, ये एक और क्वेश्चन है. Similar buckets are available in two sizes. The large bucket has height 30, base diameter 16. Small bucket has a diameter 8. क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन कह रहा है given that the small bucket has volume 850, find the volume of the large bucket. ओके, इसका वॉल्यूम हम इसके अंदर ही लिख लेते हैं 850. आई होप दैट्स विजिबल. कितना है? 850 centimeter cube. Find the volume of the large bucket. How will we do this? हमारे पास साइड्स मेंशन्ड है और वॉल्यूम का क्वेश्चन है, तो V1 over V2 is equal to L1 over L2 होल क्यूब. V1 की वैल्यू कितनी है? स्मॉल बकेट है, उसको हम ऊपर लिख लेते हैं 850, और V2 हमने लार्ज बकेट की तो वैल्यू फाइंड करनी है, राइट?
उसको एज इट इज L1 स्मॉल बकेट की कोई भी लेंथ जो हमारे पास गिवन हो दैट्स 8 और लेंथ ऑफ द लार्ज बकेट विद दैट वी हैव इज 16. We're going to plug that in over here and take the cube of that. Here we go. Now if you take the cube of that, 8 cube comes out to be 8 into 8 into 8 is 512 and 16 cube comes out to be, if you multiply 16 3 times, that's going to be 4096. ठीक है. अब इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4096 into 850 and divide that by 512, 6800. The volume 2 of the large bucket comes out to be 6800 centimeter cube. Then we have a 1:n question. 1:n question में ज़रूरी है कि आप ये समझो कि both units are in centimeters. When the question says 2 centimeter to 5 kilometers, आपने किलोमीटर्स को सेंटीमीटर्स में चेंज करना है. 1 किलोमीटर 100,000 सेंटीमीटर, तो 5 किलोमीटर इक्वल टू 500,000 सेंटीमीटर, 5 लाख. अब आपने 2 सेंटीमीटर रेशियो 500,000 सेंटीमीटर लिख लेना है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट गया. एंड सिंस दे आस्क्ड अस टू गिव द क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ 1:n, तो 2 को 1 कैसे बनाया जा सकता है? 2 से डिवाइड करके. तो हम पूरी रेशियो को 2 से डिवाइड करेंगे. 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1 एंड 500,000 डिवाइडेड बाय 2 इज 250,000 या 2.5 लाख. ये लेंथ यूजिंग स्केल है. इसमें क्या है कि वी हैव द सेम क्वेश्चन. 2 सेंटीमीटर टू 5 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर टू 5 किलोमीटर हमारा रेशो है. हमने सबसे पहले तो वही लिख ली जो प्रीवियस पार्ट में गिवन है. नाउ द क्वेश्चन सेज कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑन द मैप बिटवीन द टू प्लेसेस. अगर एक्चुअल डिस्टेंस 35 किलोमीटर है तो मैप वाली वैल्यूज हैं ये. दिस इज मैप, दिस इज एक्चुअल, राइट. अब एक्चुअल वैल्यू हमें 35 गिवन है, 35, और वो कह रहे हैं मैप पे वो कितना होगा. यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई 2 into 35 is equals to 5x and 2 into 35 gives us 70. 70 divided by 5 is equal to x. हमारे पास ये वैल्यू आ गई 14. That's the distance on the map between the two places, 14 centimeters. Do not forget to write the units, please. 14 centimeters. Then we've got area using scale. अब वही क्वेश्चन है, 2 सेंटीमीटर टू 5 किलोमीटर की रेशियो है. सबसे पहले तो उन्होंने इसको 1:n में लिखवाया, फिर एक सिंपल लेंथ कैलकुलेट की. उन्होंने एरिया की लेंथ दी हुई थी, सॉरी उन्होंने एक्चुअल लेंथ दी हुई थी और एक सिंपल लेंथ कैलकुलेट कराई. अब सेम रेशियो को यूज करते हुए एरिया निकालना है. ये रहा एरिया निकालना है. अगर मैप पे इतना हो तो एक्चुअली कितना है. तो लेट्स डू दैट स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले आप क्या करोगे कि आप 2 सेंटीमीटर टू 5 किलोमीटर रेशियो लिख लोगे जो क्वेश्चन में गिवन है. अब सिंस ये सिंपल लेंथ है, दिस इज नॉट रिप्रेजेंटिंग एरिया. व्हाट डू आई मीन बाय सिंपल लेंथ? लेट मी टेक यू बैक हियर. ये सिंपल लेंथ है, ठीक है. ये सिंपल लेंथ है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर. अगर आप एरिया में डीलिंग कर रहे हो, एरिया में कैलकुलेशन कर रहे हो, तो आप ये दो चार्ट्स को मिक्स नहीं कर सकते, वो सिंपल लेंथ वाले और एरिया वाले को. आपने उसको भी फिर उनकी वैल्यूज को भी एरिया में कन्वर्ट करना ताकि आप कैलकुलेशन कर सको. एरिया वाली कैलकुलेशन क्या होती है? मिलीमीटर स्क्वायर की कन्वर्जन सेंटीमीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में, हेक्टेयर में और किलोमीटर स्क्वायर में. तो लेट्स गो बैक. अब आपको मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन समझ आ जाएगा. ये रहा वो क्वेश्चन. आप करोगे कि जी ठीक है, लेट्स चेंज दिस इनटू एरिया. हम इसका स्क्वायर लेते हैं. 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25. अब 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 25 किलोमीटर स्क्वायर. अब हम एरिया वाले उसमें चार्ट में ऑपरेट कर रहे हैं. अब वो कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर मैप पे हो, ये वही फॉर्मेट चल रहा है कि ये वाली वैल्यूज मैप की हैं और ये वाली एक्चुअल है. हमने वो बेसिक लेंथ को एरिया में चेंज कर लिया. अब वो कह रहा है 8 सेंटीमीटर हो तो एरिया कितना होगा लेक का. आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी क्वेश्चन बन गई 4x और 25 इंटू 8 इज 200. 4 को वहाँ जाकर डिवाइड किया, यू गेट द वैल्यू ऑफ 50 किलोमीटर स्क्वायर. तो आई होप दैट मेड सेंस. कांग्रेस सिमिलैरिटी का बहुत कॉम्प्रीहेंसिव एक पास्ट पेपर सेशन था.
इसके अलावा कोई क्वेश्चन ऐसा है नहीं जो कॉन्ग्रेस सिमिलैरिटी में रह जाए, बट इफ़ यू कैन कम अप विद एनी अदर क्वेश्चन लाइक दिस दैट यू वुड वांट मी टू सॉल्व, throw me a message, communicate with me on chat, or throw me a message on WhatsApp. Hope this makes sense. Khuda Hafiz and take care.